हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले 24 ऑफ जनवरी 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का जेई मेन 2025 का केमिस्ट्री पेपर। इसमें बहुत से क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों सेक्शन में सेग्रीगेट हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो 24 ऑफ जनवरी का जो पेपर था वो बट इजी था, क्वाइट इजी था। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। चलो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय। नाउ सी हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, first option, electron gain enthalpy second option, atomicity third option, and ionization energy is also fourth option. Now we know the difference in melting point and boiling point of oxygen. We know that oxygen is actually diatomic in nature, whereas sulfur is actually octatomic in nature. Oxygen having oxygen double bond linear structure, whereas sulfur having just crown base structure. This is structure of sulfur, which is crown base. Actually, this is S8 molecule. This is S8 molecule. Due to higher atomicity and compact packing, S8 molecule generally exist in solid state, whereas oxygen molecule exist in gaseous state. And this is actually due to their atomicity, and which is the point of difference for their melting point and boiling point. Okay. Now next question. Consider the following statements about water, ammonia and methane. Now first statement, all central atoms are sp3 hybridized. We know that this is correct answer, because water, ammonia and methane, all the three molecules are sp3 hybridized. No doubt their shapes are different, their bond angles are different, but hybridization is similar in all of those. Order of dipole moment is CH4 less than NH3 less than water. This is also correct statement, because we know that due to increase in lone pair repulsions increases, and due to lone pair increase in repulsions, dipole moment is also increases. In this case, water having higher dipole moment than that of the ammonia and methane itself. Now option C, ammonia in water is a basic in nature, whereas ammonia and water are Bronsted-Lewis, Bronsted-Lowry acids and bases respectively. Yes, obviously, ammonia with water can behave like a base. It converted into NH4OH. If we treat ammonia with water molecule, this will give you NH4OH, which is a basic in nature. This is basic compound. Also, we know that ammonia is actually Lowry-Bronsted acid and base component. This is acid, and here water is acts as a base. Water is acts as a base, acid and base respectively. ठीक है. Now see here, this statement is actually correct or wrong. Actually this statement is wrong. हमने गलत पढ़ा इसको. Wrong statement है, क्योंकि here ammonia acts as a base while water acts as a acid, and this will gives you two components, that is NH4 plus, which is a conjugate acid. This is conjugate strong acid, whereas water gives its conjugate base, conjugate strong base. ठीक है. Therefore third statement is actually wrong. Now fourth statement, bond angle of water, ammonia and CH4 respectively 104.5 degree, 107 degree and 109 degree. This is correct statement. Therefore A, B, D are the correct only. A, B, D answers are correct. ठीक है. Now next move toward third question. How many of the following cation shows characteristics colored PPT with K4FeCN6? Now see here, in this case K4 present in ionization sphere, and this is actually anionic complex. When we react this K4FeCN6 with copper, it gives it gives actually Cu2FeCN6. Now when we react this with calcium,
This will give you Ca2 Fe CN6 complex. When it reacts with barium, it gives Ba2 Fe CN6. Actually, in case of barium, it does not show any type of reaction, no visible color change, no color change is here, no color change. But previously, in case of copper, we got, if we react this with copper, we get a simple color, chocolate brown color. This is colored actually. Now with calcium, if we treat this with calcium, this will give you white PPT. If you consider third ion, that is Fe3 plus, this gives Fe4, then Fe CN6 thrice, and this is actually Prussian blue color, Prussian blue color. If we treat this with Zn, this gives Zn2 Fe CN6. Zn2 Fe CN6 is also of white PPT. This is white PPT. Now next species is magnesium. Magnesium actually does not show any color change. Magnesium Fe CN6, if we consider this compound like this is no color change because there is no reaction actually. Now last, what is Mn2? If you consider Mn2, Mn2 plus, this is Mn2, the Fe CN6. This will give you pale pink color complex, pale pink color. If you consider how many following cation shows characteristic colored PPT. Now if you color PPT, this Cu2 plus ion shows colored PPT. Next, Prussian blue Fe3 plus ion shows color PPT. Then Mn2 plus shows color PPT. Mn2 plus shows color PPT. And therefore remaining two are white PPT or no color change. Therefore answer is 3. Our answer is 3. Now question number 4. Which of the following is the strongest oxidizing agent? Now remember one thing, this species in its highest oxidation state, those species which are present in their highest oxidation state are actually behaves as strongest oxidizing agent, as they itself undergoes reduction. Now here these are species from lanthanide actinide series. Here generally we know that A block elements have +3 oxidation state in common, and among all the given options provided, here C plus is in its highest oxidation state, and the C plus 4 have a tendency to accept electron and convert it into C3 plus. Since it itself being undergo reduction reaction, it can behave as a stronger oxidizing agent. Here it is stronger oxidizing agent. Remember this always. Any species with its highest oxidation state behaves as oxidizing agent, and the species with its lowest oxidation state can behave as a reducing agent. Whereas the species which having intermediate oxidation state, that may behave as oxidizing as well as reducing agent, similar to sulfur dioxide. Now next question from biomolecule chapter. Ribose present in DNA is sorry. Now ribose is a pentose sugar. This is correct statement actually. Ribose is a pentose sugar. It contains 5 carbon atoms.
It present in a furanose form. This is a wrong statement. It did not present in a pyranose form because pyran contains six membered rings, whereas it present in furanose form. We know that this is present in furanose form. Now alpha anomeric carbon is present. This is also wrong statement because here beta anomeric carbon is present. Beta anomeric carbon atom is present. Beta D ribose sugar is actually present in DNA. It present in D configuration. This is correct statement. And A is a reducing sugar in free form. Yes, obviously ribose is a reducing sugar because ribose can reduce Fehling solution and Tollens reagent. Fehling solution and Tollens reagent being itself oxidized. Fehling solution Tollens reagent को reduce कर देंगे, खुद oxidize हो जाएगा. Therefore answer is ADE. ADE option is present in B option. Okay, B option is correct. Now move toward next question, sixth question. Select the incorrect statement about the modern periodic table. About modern periodic table, the first statement, the physical and chemical properties of elements are actually periodic functions of their atomic weight. This is a wrong statement actually, because physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers, not weight. This is atomic numbers, not weight. Therefore first statement is a wrong statement which we have to identify. Now next question. In the preparation of potassium permanganate from pyrolusite ore, the fusion of pyrolusite ore is done with an alkali metal hydroxide like KOH in presence of air, an oxidizing agent like KNO3 which first produces. Okay, KMNO4 की रिएक्शन है, उसमें KMNO4 हमें प्रिपेयर करना है, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है हमें पूछा गया है. पहला प्रोडक्ट सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है. एक्चुअली आपके पास है पायरोलुसाइड ओर, तो पायरोलुसाइड ओर का फॉर्मूला होता है MnO2, इसमें होता है एक्चुअली MnO2. ये 2 मोल्स रिएक्ट हो जाएंगे बेसिक मीडियम में. फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड हियर इज KOH and oxidation takes place. This will give you K2MnO4, that is potassium permanganate. Not actually not permanganate, it is potassium manganate. Permanganate अगली स्टेप में मिलेगा. Plus byproduct here is we have turned 2 H2O molecules. And therefore our answer is K2MnO4, option B. Now a numerical question from mole concept. When x gram of benzoic acid reacts with NaHCO3, 11.2 liter of CO2 is released at 273 Kelvin and 1 atm pressure. Actually this 273 Kelvin and 1 atm pressure, this is STP condition. What is this? STP condition. And we know that for STP condition 11.2 liter of CO2 means actually 0.5 mole CO2, because 22.4 liter of any gas at STP condition is equal to 1 mole. Okay, now we got a mole. We have to react benzoic acid with NaHCO3. Now what is the reaction actually? Benzoic acid looks like this. This is benzoic acid, COH. When this reacts with NaHCO3, which is base, it gives you sodium salt of benzoic acid, CONA, plus H2O with a liberation of CO2 gas. This CO2 gas form effervescence in the solution. This is characteristic test for organic acids actually. Now here in this reaction 1 mole of benzoic acid reacts with 1 mole of NaHCO3. 1 mole of NaHCO3 to give 1 mole of CO2. Now हमें ये पूछा गया है कि हमारे पास x ग्राम है, इसका x ग्राम बेंजोइक एसिड है. x ग्राम बेंजोइक एसिड को हमने NaHCO3 के साथ रिएक्ट किया और हमें मिला एक्चुअली यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ऊपर की, और ये हमें गिवन दिया गया है, नीचे वाला गिवन पैरामीटर है.
अब गिवन पैरामीटर में हमें कहा गया है कि हमारे पास 11.2 लीटर है CO2, 11.2 लीटर CO2 विच इज़ इक्वल टू होता है 0.5 मोल। अगर हमारे पास CO2 0.5 मोल मिला है तो इसका मतलब जो COH बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड भी 0.5 मोल ही यूज़ हुआ होगा, एक्चुअली 0.5 मोल यूज़ होगा। अब हमें निकालना है 0.5 मोल बेंजोइक एसिड का मास, तो हमें पता होना चाहिए इसका मोलर मास। बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है 122, इसका मोलर मास 122 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होता है। तो हमें निकालना है x ग्राम बेंजोइक एसिड विच इज़ इक्वल टू मोल इनटू इट्स मोलर मास। अब मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल हो गया, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, इज इक्वल टू साइन लगेगा, इज इक्वल टू मोल हो गया हमारे पास 0.5, मास से मल्टीप्लाई कर दिया 122, अब 122 के हाफ हो जाता है 61 ग्राम। दिस इज हमारा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is the most reactive towards nucleophilic addition reaction? Actually, the order of reactivity depend on the hindrance and electron deficiency on carbonyl carbon. The reactivity towards nucleophilic addition reaction depends on electron deficiency on कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी रिएक्शन फास्टर होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितना हिंड्रेंस होगा उतना फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जनरली डिपेंड करेगा। अब हमें 4 कंपाउंड दिए गए, हम इससे स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ओके, यहाँ पे CHO ग्रुप, ये तो अल्डिहाइड है। अच्छा, हमें ये भी पता है एक सिंपल लॉजिक कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये भी हमें पता है। ये अगर हम डेफिशिएंसी बात करें तो डेफिशिएंसी के केस में अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज कीटोन हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स विच आर डोनेटिंग, whereas aldehyde having only 1 alkyl group which is donating. Now second molecule is here, हमारे पास एक बेंजाल्डिहाइड भी है, प्लेन बेंजाल्डिहाइड, एक हमारे पास है पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड। ओके, डोनेटिंग ग्रुप हम अलग से लिखेंगे, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप वाले अलग लिख दिए हमने। एक है एसिटोफेनॉन हमारे पास, कीटोन सबसे लास्ट में लिखेंगे, हमें वैसे भी ऑर्डर में लिखना है इसको। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हो गया एसिटोफेनॉन हमारे लिए, एसिटोफेनॉन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे ये तो कीटोन है। अब हमें पता है कि कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होता है अल्डिहाइड की कंपैरिजन में, पहले तीनों तो अल्डिहाइड है तो इसका मतलब ये सारे मोर रिएक्टिव होंगे। अब यहाँ पे देखो ये CH3 ग्रुप है, ये वाला CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है जो कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से डेफिशिएंसी कार्बन की कम हो जाएगी, हमें डेफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब इससे ये वाला ज़्यादा होगा, प्लेन बेंजाल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। अब प्लेन बेंजाल्डिहाइड से ज़्यादा पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड रिएक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है, ये NO2 ग्रुप माइनस R इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस I इफेक्ट दिखाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से यहाँ पे कार्बन के ऊपर मोर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। डेल्टा प्लस चार्ज आने की वजह से रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फिजिकल केमिस्ट्री से, एट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कम होगा, ऑब्वियसली कम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है वाटर की, और इट बिकम स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट। वी नो दैट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का, फॉर वाटर फॉर H2O जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे वाटर के लिए वो है 373 केल्विन, दैट इज हायर टेम्परेचर। दैट मीन्स वी कैन से दिस रिएक्शन non-spontaneous at low temperature
but spontaneous at high temperature. Now, according to sign conventions of delta G, delta H and delta S correlation, we know that this happens only when delta H and delta S आर पॉजिटिव, मतलब इन दोनों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तभी ये हो सकता है, तभी हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस आल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है हमको, 2.32 इंटू 10⁻³ kg of Fe3O4 reacts with 2.8 into 10⁻³ kg of CO, that is carbon monoxide, according to following reaction। चलो पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं हम Fe3O4, इसकी रिएक्शन करनी है हमें CO के साथ, हमें मिलने वाला है CO2 प्लस यहाँ पे Fe मिलेगा। ओके, हमने रिएक्शन तो लिख ली। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा हमें। बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 4 कर दें, 4CO, तो यहाँ पे 4CO2 मिल जाएगा और थ्राइस Fe मिल जाएगा, तो अभी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बैलेंस रिएक्शन में ये स्टैंडर्ड केस हम कंसिडर कर दें कि स्टैंडर्ड केस क्या है। स्टैंडर्ड केस ये है कि Fe3O4 का अगर 1 मोल आप लेते हो तो उसके साथ 4 मोल CO2 की रिएक्ट होंगी और तभी आपको 3 मोल Fe के बाहर मिलेंगे, आउटकम में मिलेगा। अब 1 मोल का जो अगर बात करें Fe3O4 की, तो उसके मास जो होगा, Fe का मास होता है 56, ऑक्सीजन का एक का मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास होगा आपका 16, 4 ऑक्सीजन का हो गया जो है ना 64, तो 64 प्लस 3 इंटू 56, ये अगर टोटल करते हो आप तो ये आ जाएगा 232 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलेकुलर मास है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलेकुलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, और Fe का मास तो हमें पता है ये होगा 56 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया इफ x kg ऑफ Fe इज फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो हमें बताया गया इसका मास गिवन, एक्चुअली दोनों का मास दिया गया जो रॉ मटेरियल है, इसका मास दिया गया 2.32 इंटू 10⁻³ kg और इसका मास दिया गया 2.8 इंटू 10⁻³ kg। अब इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, चलो मोल्स निकाल लेंगे, कितने मोल्स दिएगी इसकी। अब 2.32 इंटू 10⁻³ kg को 232 ग्राम पर मोल से अगर डिवाइड करते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा 10⁻⁴ मोल मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे अगर हम करते हैं 2.8 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करते 28 से, तो हमें मिल जाएंगे 10⁻⁵ मोल्स। अब स्टोइचोमेट्री ये कहती है हमें कि अगर हमारे पास 1 मोल Fe3O4 होगा तो 4 मोल्स आपको CO लगने वाले हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर 1 इंटू 10⁻⁴ मोल अगर हमारे पास Fe3O4 होगा तो यहाँ पे हमको 4 इंटू 10⁻⁴ मोल CO लगने वाला है, लेकिन ये तो 10⁻⁵ है जो कि 4 इंटू 10⁻⁴ से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, एक्सेस, और ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, तो हमारे लिए यही वर्थ है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बात सिंपल सी है, हमें ये कैलकुलेशन करना है कि अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो ये 3 मोल होंगे, ये अगर 1 मोल होगा तो Fe 3 मोल होगा, ये रिलेशन हमारे पास मिल गया। ये यहाँ पे अगर 1 मोल है तो ये हमें Fe मिल जाएगा 3 मोल्स, इसके 3 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया कि जो गिवन मास है 10⁻⁴ मोल Fe3O3, तो दिस एक्चुअली गिव्स यू दैट हियर you want this 3 into 10⁻⁴ mole Fe. Now we have to calculate its, this is mole, we have to calculate its mass. Now mass कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 into 10⁻⁴, ये तो मोल हो गए। अब मोल को हम Fe के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 into 56, 3 into 50 10⁻⁴ ही हो गया 56, ये मोल है हमारे पास। तो ये 10⁻⁴ भी करना है हमको,
10⁴ कर दे तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे हम सबसे पहले। 10⁻³ इसमें से निकाल लेंगे तो केजी हो जाएगा। तो 3 × 56 × 10, ये यहाँ पे ग्राम था, ये यहाँ पे केजी है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 168, ये 10 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये हो गया 1680 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मोल कंसेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए गए आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट, दुमास मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। ये पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है कि दुमास मेथड नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। देन सेकेंड, इन दुमास मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नहीं होता है, इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है फ्री, इसमें नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है फ्री N2 ग्रुप में, फ्री N2 ग्रुप में होता है। एक्चुअली सबसे पहले इसमें कंपाउंड को हीट किया जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। फिर इसके बाद नाइट्रोजन गैस जो भी रिलीज होगी उसको कलेक्ट किया जाता है एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर, अल्कलाइन एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल KOH वगैरह के अंदर उसको जनरली कलेक्ट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। पहला करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार जेई में। यहाँ पे Hg है, Hg2+ है, यहाँ पे C एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, HCN, ये H2 होगा, ये Ni होगा। थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम। चलो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड है, दिया गया प्रोपाइन। प्रोपाइन को आप मर्क्यूरी और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, मर्क्यूरी आयन और एसिड के साथ, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा कीटोन आपको, CH3C+O CH3 कीटोन। सबसे पहले वाटर की एडिशन होगी इसमें, वाटर की एडिशन होने के बाद टॉटोमरिज्म हो जाता है, ये हमने अल्काइन चैप्टर में पढ़ा था। अब इसके बाद ये कीटोन के ऊपर आप जब HCN डालोगे, HCN सेकेंड स्टेप, तो HCN डालने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, आपको कंपाउंड मिलेगा CH3C, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे CH3 एज इट इज होगा और नीचे लगेगा CN साइनाइड। अब इसी ग्रुप के ऊपर आप अगर H2Ni डालते हो तो ये हो जाती है रिडक्शन रिएक्शन, H2Ni रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा साइनाइड ग्रुप का, बाकी तो किसी का होने से रहा। यहाँ पे OH एज इट इज़ रहेगा, CH3 भी एज इट इज़ रहेगा, बस जहाँ पे CN है वहाँ पे आपको CH2 और NH2 मिल जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपल रिएक्शन ये भी, ये दोनों रिएक्शन तो एक्चुअली 11 की थी, मर्क्यूरी एसिड वाली रिएक्शन और H2Ni वाली। नो डाउट H2Ni का रिएजेंट आपने 11 में सीखा है, लेकिन अमाइन चैप्टर में पढ़ा था आपने कि साइनाइड को आप रिड्यूस करोगे तो उसका प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इज गिवन टू यू। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया है स्ट्रक्चर में, ओके। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन आपको ढूंढना है। अब देखो अगर यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड है साइड में, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। अब ये डबल बॉन्ड को आप अगर कंसिडर करते हो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या दिखाएगा? रेजोनेंस दिखाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले पर प्लस चार्ज को ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो स्टेबलाइज कर देगी इस वाले को। तो ये भी हो सकता है, ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसके तुरंत नियर बाय यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है ये -I इफेक्ट दिखाता है, ये -I भी दिखा रहा है और एक्चुअली ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे भी इंसर्ट हो सकती है, तो ये -R भी दिखा रहा है, -I -R दोनों दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा डोनेटिंग इफेक्ट होना चाहिए। अब देखो जैसे ये -I इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस साइड भी आ जाएगी। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला ये डबल बॉन्ड इस साइड भी आ जाएगा, तो ग्रीन वाले से विड्रॉइंग इफेक्ट हो रहा है और येलो वाले से डोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉइंग स्ट्रॉन्गर है। विड्रॉइंग स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये पूरा जो कार्बोकटाइन होगा ये लेस स्टेबल होगा। आपको मोस्ट स्टेबल पूछा गया। यहाँ पे भी नीचे देखो ऑप्शन सी में ये F ग्रुप दिया गया है। F ग्रुप हमें पता है -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए मतलब ये भी लेस स्टेबल होगा, विड्रॉइंग से नहीं होगा, डोनेटिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है एक्चुअली।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 ग्रुप पे ये प्लस आई दिखाएगा। चलो ये यहाँ पे तो प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट प्लस आई। यहाँ पे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा। अब ऑक्सीजन की लोन पेयर फिर से यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगी, और यहाँ पे CH3 ग्रुप भी है जो एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे प्लस आई भी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट भी है। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, EDE बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। देयरफॉर हमारा आंसर ये बी वाला हो जाएगा जो सबसे करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी, क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आल्सो प्रेजेंट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आल्सो प्रेजेंट, मतलब एक बार होने के बाद फिर से उसके आगे पे, यहाँ पे देखो कार्बोकटायन के नेक्स्ट पोजीशन पे, कार्बोकटायन के नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वो एक कॉन्जुगेशन, उस कॉन्जुगेशन के आगे लोन पेयर ऑक्सीजन की जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तो एक उसको बोला जाता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जनरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr पूछा है। अब HBr कौन सी रिएक्शन शो करता है, HBr एक्वियस HBr कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एक्वियस HBr शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन क्या मैटर कर रहा है, ये RDS है। कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, फिर कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन फॉर्मेशन यही हमारी क्या है, RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप देखें यहाँ पर, तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल अगर इसको देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये Q वाली स्पेस देखो। तो अगर यहाँ पर कहीं पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा दी, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाने के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये प्लस चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन की लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेबल बन सकता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से कहीं पर भी बनेगा, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं है, लेस स्टेबल है। ये कैसा है, लेस स्टेबल, उसके एडिशन में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे डोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है CH3 ग्रुप का। अब इन दोनों में से कहीं पे भी बन जाए, दोनों जगह पे कहीं पे भी बने, दोनों जगह पे प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, ये आर इफेक्ट है। और हमें पता है कि रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन द इंडक्टिव इफेक्ट, देयरफॉर हमारा आंसर आ जाएगा ए, जो कि P होगा, P स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट हो जाएगी। नंबर 16, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम A to C by emitting the wavelength of 2000 Armstrong and also jumps from B to C। अच्छा, 3 स्टेप है इसमें, 3 स्टेप, चलो 3 स्टेप हम ड्रॉ कर देते। ये हमारी पहली स्टेप, ये हमारी सेकेंड स्टेप, ये हमारी थर्ड स्टेप। इसको हमने नाम दे दिया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। अब सबसे पहले उन्होंने जंप कहाँ से किया, A से C तक जंप किया। अब A से जब C तक जंप किया उन्होंने, तो 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ बनी, ये देखो 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ बनी। अब बाद में उन्होंने B से C पे जंप किया, B से C पे जंप किया, तो B से C जंप करने के बाद उनकी वेवलेंथ बनी 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की। और उन्होंने पूछा है अगर आप A to B जंप करते हो, अच्छा A to B जंप करते हो तो यहाँ पे कितना होगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला देखो, ये इस तरह से फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमें एनर्जी ऑफ A to C इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ A to, ये एनर्जी ऑफ A to B प्लस एनर्जी ऑफ B to C। अब बट हमें तो पता है कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा होता है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे इक्वेशन में। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा, ये हो जाएगा AC के लिए, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, ये हो जाएगा AB के लिए, प्लस 1 अपॉन लैम्बडा,
ये आ जाएगा BC के लिए। अब सबसे वैल्यू पुट करते हैं, 1/2000 इज इक्वल टू 1/λ ऑफ AB जो हमें निकालना है, प्लस 1/6000, देयरफॉर 1/λ AB विच इज इक्वल टू, ये प्लस 1/6000 इधर प्लस था तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये अपॉन 1/2000 माइनस 1/6000। इसको अगर हम LCM निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 इंटू 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10⁶ आ जाएगा नीचे, ये 12 इंटू 10⁶। अब ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 6000 से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले पे, यहाँ पे 2000 से, तो 6000 माइनस 2000 ये हो जाएगा 4000, ये आ गया। अब ये तो ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब ओरिजिनल वैल्यू की इसको फिर से अगर सिंप्लीफाई करते तो 30 तो कट हो गए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 4 से अगर 12 को डिवाइड करते तो 3, दैट 3 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल में है, तो देयरफॉर लैम्बडा ऑफ AB इज इक्वल टू 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इनके क्वेश्चन जेईई में जनरली होते ही होते हैं, हमेशा याद रखना। 17, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर अ गिवन सेल बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ इक्वेशन दिए गए, आपको Fe2+ और Ag+ को कंबाइन करके Fe3+ और Ag बनाना है। तो इसका मतलब अभी देखो यहाँ पर यहाँ से Fe2+ हो तो Fe3+ हो रहा है, तो हमारे पास Fe2+ से Fe3+ जाने वाली कोई रिएक्शन नहीं, हमको बनानी पड़ेगी। अब देखो हमारा सिंपल सा फंडा है, आपको जो चाहिए जहाँ चाहिए वो अगर वहीं पे है तो उसका साइन प्लस है। देखो हमें Fe2+ कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में, यहाँ पे Fe2+ लेफ्ट में है, तो इसका साइन हम प्लस कर देंगे, इक्वेशन 2 प्लस कर देंगे, प्लस इक्वेशन 2, ये इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे। और अभी Fe3+ हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो राइट हैंड साइड में तो है नहीं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से ये Fe3+ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 3 में, तो उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस इक्वेशन 3। अब 2 - 3 करना है हमको, लेकिन ये सिंपल सी रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, ये एक्चुअली होगा ΔG के फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। अगर हम ये ऑपरेशन करते भी है तो ऑपरेशन करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा Fe2+ जो कि लेफ्ट में, Fe2+ जो कि लेफ्ट में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Fe3+ में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा है, जनरली नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको नॉर्मल ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन या फिर ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ΔG का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता है ΔG का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ΔG नॉट, ये ΔG नॉट थर्ड हमें निकालना है, ये तीसरा इक्वेशन है जो दोनों को ऑपरेशन करके हमने तीसरा थर्ड निकाल लिया, ΔG नॉट 3, ठीक है। अब इसको करने के लिए यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गए हमको, ये 2 इक्वेशन, एक्चुअली हमें 2 और 3 इक्वेशन तो हमने लिख दिया, हमें इसको 4 बोल देंगे। 1 मिनट, इसको थोड़ा स्क्रैच कर अच्छे से लिखिएगा, ΔG नॉट 4, तो ये हो जाएगा ΔG नॉट 2 माइनस ΔG नॉट 3। अब ये ऑपरेशन हमें करना है, लेकिन ΔG नॉट का वैल्यू -NF ई नॉट सेल होता है, जो कि सब में कॉमन होगा, बट ΔG नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल होता है। तो इसी के बेसिस पे ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हम इस तरह से लिख देंगे, कुछ यहाँ से इधर आ जाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिल जाएगा N4E4, ये वाला इक्वेशन 4th नंबर है हमारा, N4E4 इज इक्वल टू N2E2 माइनस N3E3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें N1, ये N4 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी E वैल्यू हमें निकालना है, E4 वैल्यू हमें निकालनी है, अभी बाकी रखेंगे हम, इसको रहने देंगे E4 वैल्यू को। N2 के अंदर 2 सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हमें, इसका वैल्यू है Y वैल्यू, तो 2Y से मल्टीप्लाई करना है, पोटेंशियल वैल्यू, माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी पोटेंशियल वैल्यू है Z।
अब यहाँ पे ये सब वैल्यू हमने डाल दिया, 2y माइनस 3z, ये हो गया E4, ये हो गया E4। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि E0 सेल निकालना है। ये तो हमें मिल गया तीसरा सेल, थर्ड सेल का E4 वैल्यू मिल गई, ठीक है, थर्ड सेल की E4 वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि फाइनल वैल्यू इन दोनों की, ओके। ये 1 इंटू E4, E4 ही होगा। अब देखो होगा क्या, E0 सेल कैसे निकालोगे, E0 सेल निकालने के लिए आपको E0 Fe का हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, तो Fe2+ को कर देंगे Fe3+ में कन्वर्ट, ये ऑक्सीडेशन, प्लस E0 ये होगा Ag+ का Ag में कन्वर्जन, ये तो हो गया रिडक्शन, तो उसका पोटेंशियल वैल्यू डाल देंगे। Fe2+ टू Fe3+, इसका पोटेंशियल वैल्यू है E4 आ चुका है। अब E4 की वैल्यू हमें पता है, E4 की वैल्यू है 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z, और Ag+ से Ag की वैल्यू आपको हम अगर देख लेते Ag+ से Ag की वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में दी गई है, ये वैल्यू आ जाएगी x, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2y माइनस 3z प्लस 2y माइनस 3z प्लस x। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। पहले एक रिएक्शन दी गई है आपको, ये वाला प्राइमरी अल्किलाइड है यहाँ पे, वैसे तो ये वाला भी प्राइमरी अल्किलाइड है, ये दोनों भी प्राइमरी है। यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूशन है, सिंपल न्यूक्लियोफाइल आपका, सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस कर रहा है, OH माइनस क्या कर रहा है, Cl माइनस को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर एकदम सिंपल है। एक मिनट, Cl माइनस को OH माइनस रिप्लेस कर रहा है। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्शरी अमाइन ग्रुप है, टर्शरी अमाइन, और टर्शरी अमाइन ग्रुप जो है वो यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, या इस केस में तो हमें पता है यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, Cl निकल रहा है, Cl की जगह पे दूसरे ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं। अब Cl की जगह पे दूसरे ग्रुप आ रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे कौन कौन से रिएक्टेंट आपको प्रॉपर सॉल्वेंट चेक करना है, तो दोनों के सॉल्वेंट सेम ही रहेंगे, दोनों के सॉल्वेंट होंगे पोलर अप्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों, क्योंकि SN2 रिएक्शन होगी, दोनों के केस में SN2 रिएक्शन होगी, तो पोलर अप्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN2 रिएक्शन में यूज होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिया है COCl3.5H2 करके, COCl3.5H2। अब टोटल 3 मोल्स ऑफ आयन मिलने वाले, आयन 3 मोल मिल रहे, मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स कटायन होगा और दो आयन्स आयनाइजेशन स्फीयर में से होगी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 आयन आयनाइजेशन स्फीयर में और एक कॉम्प्लेक्स कटायन, तो ये वाला ऑप्शन है। अब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये होगा CONH3 5 टाइम्स Cl2। इसको अगर आप डिसोसिएट करोगे वाटर के साथ, इसमें वाटर डाल दोगे तो एक्वेस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CONH3 5 टाइम्स, यहाँ पे Cl बन जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होगा 2 प्लस यहाँ पे 2 Cl माइनस होंगे। अब यही 2 Cl माइनस जब आपके AgNO3 के साथ रिएक्ट होंगे तो आपको 2 मोल AgCl का PPT मिल जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वर्सेस टेम्परेचर इन के। चूज द करेक्ट ग्राफ विच रिप्रेजेंट डिप्रेशन। हम ग्राफ बहुत से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ थे, शायद आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है सोल्यूशन कॉलिगेटिव का। अब सोल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर में हमने पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, जो कुछ इस तरह से होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। इस तरह से आपके ऑप्शंस में कोई ऑप्शन होगा तो उसे ढूंढकर आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे होगा वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं जनरली टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया हमने। अब यहाँ पे 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होगा सॉलिड सॉल्वेंट और एक होगा लिक्विड सॉल्वेंट।
तो ये हम लेंगे सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है वेपर प्रेशर वाला, ये लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व है। ये कौन सा सॉल्वेंट है? लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये पॉइंट को हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करते यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस पे, तो a point where solid solvent vapor pressure is equal to liquid solvent vapor pressure, this point is actually termed as del TF, that is freezing point of pure solvent। और दूसरे हम अगर यहाँ पे एक बात करें सॉल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें जो बनता है सॉल्वेंट में थोड़ा सोल्यूट डालने के बाद, तो इसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पे था, ये वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे एक पॉइंट हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे जो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और हमें पता है कि जनरली जो पॉइंट होता है डेल टी एफ, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये निकाला जाता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ करके। तो ये वाला ग्राफ अगर आपके किसी भी ऑप्शन में था तो ये वाला ग्राफ सबसे करेक्ट था, आइडियल था। थोड़े सिंबल वेरी हो सकते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर था उसमें, लेकिन फिर भी नियर अबाउट यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड गिवन बिलो। ओके, ये कंपाउंड आपको सिंथेसिस करना, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ का, ये वाला यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट है। एक मिनट, ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है, आपको डबल बॉन्ड दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की अगली पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया। अब आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अब रिएक्टेंट क्या क्या दिए गए, ये पहला थोड़ा प्रिंट बराबर नहीं हुआ है, NBS दिया गया है, यंद्रोमोसक्सिनिमाइड। अब चलो इसमें उल्टा करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्डिहाइड है और PCC अल्कोहल पे काम करने के बाद बनता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो इससे पहले वाला ऑप्शन, PCC के पहले वाला ऑप्शन जो होगा, वो PCC से पहले वाला ऑप्शन होगा इस तरह से कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे होगा CH2OH। अब इसके पहले जो है वो B2H6 THF वाला रिएजेंट है जो कि OH माइनस आयन के प्रेजेंस में फॉलोड बाय H2O2 है। ये हो गई हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली एंटी मार्कोनिकॉस रूल से वाटर की एडिशन होती है। तो OH यहाँ से निकाल लेंगे, उसके अगले पोजीशन पे H निकाल लेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, ये होगा CH2। ये B2H6 के पहले, ये B2H6 से पहले, ये यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे बना। अब इसके पहले ये टर्शरी ब्यूटाइल पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन है। अब पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इलिमिनेशन रिएक्शन की केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो इलिमिनेशन होने से पहले वाला कंपाउंड था वो कंपाउंड कुछ इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक CH3 होगा और यहाँ पे होगा एक Br, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हो सकता है। अब इससे पहले NBS आपने डाल दिया तो NBS अलीलिक सब्सटीट्यूशन शो करता है, NBS की अलीलिक सब्सटीट्यूशन। तो ओरिजिनल आपका जो कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे होगा CH3, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे CH3 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा B, ठीक है। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। KSP आयोनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है। इफ द KSP ऑफ CrOH थ्राइस, अब CrOH थ्राइस को आप देखो, कंसिडर करो ये सॉल्ट CrOH थ्राइस को, अब जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको मिलेगा Cr3 प्लस 3 टाइम्स OH माइनस। अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी S कंसिडर करेंगे ओरिजिनल सॉल्ट की, तो Cr3 प्लस की भी सॉलिबिलिटी S होगी और लेकिन 3 OH माइनस की थ्राइस S होगी। ये सिंपल बात है। अब ये जो सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया 1s2 सॉल्ट। वैसे 1s2 सॉल्ट के लिए हमें पता है आंसर क्या आता है, तो हमें पता है फॉर 1s2 सॉल्ट, फॉर 1s2 सॉल्ट KSP
इज इक्वल टू 27s⁴, ये हमें पता है। हमें यहाँ पे केस भी दिया गया है और हमें एस निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। एक्चुअली 10⁴ आपको निकालनी है, तो उसके लिए एस ही निकालना पड़ेगा सॉलिबिलिटी के लिए। तो देयरफॉर सॉलिबिलिटी कैसे निकालोगे? सॉलिबिलिटी निकालने के लिए आपको KSP को 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉरी s⁴ मिलेगा आपको, तो KSP को 27 से डिवाइड कर दो। अब KSP की वैल्यू उन्होंने क्या दी? KSP की वैल्यू हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 27। अब डिवीजन तो होगी नहीं, तो डेसिमल पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम लिखते हैं एक्चुअली इसको हम 32 के फेवर में कर देंगे, पूरा का पूरा 10⁻³ में कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160, 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻32 होल डिवाइडेड बाय 27। अब ये मिल जाएगा आपको लगभग 5.92 इंटू 10⁻32 इंटू 10⁻32। सही से लिखेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ लिखने में गड़बड़ हो रही है। ये 10⁻32। अब हमें निकालना है एस। अब एस निकालना है तो इसको क्या करें, 4th रूट निकालना पड़ेगा। 4th रूट ऑफ 5.92 इंटू 10⁻32 10⁻−32 हो जाएगा, ये माइनस होगा एक्चुअली। अब 10⁻−32 का तो आ जाएगा हमें, 10⁻−32 का 4th रूट क्या होगा, 10⁻−8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें 5.92 को, तो ये लगभग आ जाएगा आपको 1.56 के आसपास। इसका आंसर आ जाता है आपका 1.56 के आसपास। आपको पूछा गया है एक्स वैल्यू 10⁻⁴ की, 1.6 यहाँ पे दिया गया था इंटू 10⁻⁻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 ⁻
8 होगा 10⁻⁴ में। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। जनरली KSP के वगैरह भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज इन अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें पता है, ये तभी हो सकता है एट कांस्टेंट, जब क्या होगा, वॉल्यूम होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब सेम हो गया कि डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो है। अब जैसे डेल्टा वी ज़ीरो हो गए और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से प्रोसेस क्या हो गई, ये हो गई आइसोकोरिक प्रोसेस। और डेल्टा वी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वर्क डन हो गया ज़ीरो। हमें ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ऑप्शन से प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, प्रोसेस आइसोकोरिक है, सही सही है। दूसरा, वर्क डन इन अ प्रोसेस इज ज़ीरो, प्रोसेस में वर्क डन क्या है, ज़ीरो हो रहा है, ये भी करेक्ट है। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। अब ये कैसे होगा, हमें पता है एक सिंपल सा इक्वेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पता है फॉर्मूला चेंज DU, चेंज इन इंटरनल डिफरेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DU बोल सकते हो, DE बोल सकते हो, इज इक्वल टू NCV इंटू DT। अब यहाँ पे CV तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो तो कांस्टेंट होगी। DT इसका मतलब DU की जो वैल्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज A, B, C, ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट। ये तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फास्टर, इनमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन सबसे फास्टर दिखाएगा, सबसे फास्टर न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl एक Cl, ये Cl मॉलिक्यूल है सारे के सारे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वही फास्टर दिखाएगा जिसका कार्बोकटायन सबसे स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ से अगर Cl निकल गया तो प्लस चार्ज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज। यहाँ से निकल गया तो सेकंड ऑप्शन में तो प्लस यहाँ पे बनेगा, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बनेगा। अब देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में पॉजिटिव जो है ये टर्शरी है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है, और इसमें 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है, 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे अगर देखो कार्बोकटायन, तो ये कार्बोकटायन एक्चुअली प्राइमरी है, इसको दूसरा कोई ग्रुप नहीं लगा, ये प्राइमरी है, फिर भी प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे एक बार प्लस आई इफेक्ट है, ओनली 1 टाइम, वो भी आइसोप्रोपिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में यहाँ पे CH2 है, ये प्राइमरी ग्रुप है, ये 1 डिग्री है, इसको प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ओनली वंस मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे अगर देखिए Cl निकल गया फर्स्ट ऑप्शन में,
फर्स्ट ऑक्सीजन में आप देखो Cl निकल गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कुछ लोन पेयर्स होती है, ये लोन पेयर आपको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी और कार्बोटाइन को स्टेबलाइज करेगी, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल वो भी हो जाएगा। अगर मोस्ट स्टेबल है तो रिएक्शन क्या होती है, आरडीएस होती है, हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन क्या होता है, आरडीएस होता है। तो आरडीएस होने की वजह से सबसे फास्टर रिएक्शन किसकी होगी, इसी की होगी सबसे फास्टर रिएक्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे, ओके एक डबल बॉन्ड मिसिंग है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। फॉलोइंग कंपाउंड इज अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द अल्किन। अब सिंपल बात देखो कि ये अल्डोल का प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, अल्डोल। तो अल्डोल का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो अल्डोल हमें पता है कि अल्डोल में क्या होता है, एक का अल्फा कार्बन, मतलब जहाँ पे C डबल बॉन्ड है उसका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालने होते हैं, अल्फा कार्बन से आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे, बीटा से आपका OH निकल जाता है, तो ये बीटा हो गया, बीटा से OH होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, तो ये एक ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड वो वाला। ये ग्रुप अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बन जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट आ जाएगा ये वाला ग्रुप, ये बॉन्ड एज इट इज होगा, ये यहाँ पे होगा C, यहाँ पे H बोलते हैं हम CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिखा देंगे। अब यहाँ से ये बॉन्ड एज इट इज होगा, यहाँ से ये CH2 होगा, ये अल्फा कार्बन है हमारा CH2 वाला अल्फा। अब इसको हम अलग से लिखेंगे, ये CH2 है, यहाँ पे C हो गया, ये C, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड होने के बाद में यहाँ पे CH3, ये बराबर हो गया हमारा। अब देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अल्किन से बनता है, इससे तो ये तो अल्डोल का प्रोडक्ट है, ये हो गया OH माइनस, ये अल्डोल है। अब ये वाला प्रोडक्ट उन्होंने बोला है कि ये मिलता है ओजोनोलिसिस करने से, अब अल्किन से मिलेगा। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड एक दूसरे कनेक्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पे काउंटिंग शुरू करते हैं, देखो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब 2, ये फर्स्ट वाला कार्बन 6 वाले को कनेक्ट हो जाएगा, अब फर्स्ट वाला 6 वाले को कनेक्ट हो जाएगा तो एक रिंग बन जाएगी, साइक्लोहेक्सागोनल रिंग। ये देखो फर्स्ट वाला 6 वाले से कनेक्ट हो गया, ये देखो हमने फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट दिखा दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6th, और 6 और फर्स्ट में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया दोनों में, और ये फर्स्ट वाले कार्बन को यहाँ पे CH3 भी अटैच है, ये फर्स्ट वाले कार्बन को हम CH3 दिखा देंगे। तो ये वाला हमारा एक्चुअल आंसर होगा कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसी को CH3 लगा हुआ, डबल बॉन्ड जहाँ पे उसी कार्बन को CH3, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट 24 जनवरी 2025 JEE मेन फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास मिस्टर केमोवेट का, ये शुरुआती चैनल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो हम शुरू में मतलब ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल में हम चैनल पे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ ईजी ऐसा केमिस्ट्री टॉपिक डालते रहेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।